So let's now try to connect this MVC to the database. So once my student hello controller, this, so what should be the name of this controller ideally then? Every model will have every model will have a set of controller, service and repository. So ideally what should be the name of this controller now? Student controller. Then I should be making one more package by what name? In that I should make a class, right? As of now we'll do a class. Which class? If I need to fetch all the database credentials, I can use any of my existing class. We will do JDBC with you all. Which day? Which day did we do JDBC with you all? Okay, you all had done JDBC and come, right? So I'll take the JDBC of my previous batch. So I'll take this MySQL connection ITP, right? So I'll put it in the repository. If I want to have a database connection, what is my database name? ITP2DB. And the ITP2DB, what should I have? Ideally, I should have a what? A table by the name student. So who will create the student? See, I'm building you all for Hibernate now. I'm building you all for now. See what all restrictions the traditional JDBC has. So who has to go and make the table now? ITP2DB. Who will make the table? I have to go and make the table, right? If I already have a table EMP, will this work? Okay, should work, right? So if this table was not there, then I had to create this table. Now if I do fetch all students, we had what? Roll number, name, percentage, no? Okay, so I have to make them. I have to go and make. So create table. What name should I give to the table name? Student. And roll number, integer 5, primary key, sname, varchar of 10, and percentage should be, I'll do decimal of, so if I have 78.50, how many characters? 4 characters, how many decimal in that? Make sense? So this table is there now. Okay. Okay. So my table also has been there. Data correction also is successful. Let's go to the student repository. And so now whatever student data I have got in the controller, when I did the save student, I have got the data over here. Now what will I pass? Who will I pass it to? Who will I pass this data to? नहीं, layers क्या है? डायरेक्ट repository जाता. Repository ये रहा. मैं इधर हूँ सर्विस को देने. ये पासिंग द पार्सल होगा. तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट है ना, डॉट क्या करूँगा? फंक्शन बनाऊंगा. और क्या नाम से इसको पास कर रहा हूँ मैं? ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन है? नहीं है. क्रिएट करते हैं. अब इसको किससे करना है कम्युनिकेट? रेपोजिटरी से. तो रेपोजिटरी में क्या लगा देंगे हम लोग? रेपोजिटरी का भी जो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, तो ऐड
कंपोनेंट लगा देंगे, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट फिर यहाँ ले लेंगे। क्या बोल के, मिल गया, कंट्रोल शिफ्ट ओ, कंट्रोल शिफ्ट ओ क्यों किया, फिर अलग पैकेज में ना, और फिर क्या करेंगे इधर डॉट, ये फंक्शन ले लेंगे ऐड स्टूडेंट, क्या बोल के, ये फंक्शन है क्या रिपोजिटरी में क्रिएट कर, ठीक है। अब ऐड स्टूडेंट का कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं JDBC का, किधर गया, इंसर्ट प्रिपेयर्ड ना, कॉपी कर लिया, ये पूरा का पूरा कोड मुझे लिखना पड़ रहा है अभी, स्टूडेंट सर्विस, ठीक है ना। आप लोग ये गौर कर देखो, डेटा कनेक्टिविटी मैंने इस्टेब्लिश किया और इसमें सारा जेड टेबल भी मैंने क्रिएट किया, तो कौन सी चीज़ें थी जो मैंने खुद से की JDBC के अंदर, तो JDBC के मैं देख रहा हूँ लिमिटेशंस, आपको क्या दिखा रहा हूँ, लिमिटेशंस ऑफ JDBC। पहला क्या, टेबल क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी बाय प्रोग्रामर, ठीक है, ओके। अब किस स्कैनर की जरूरत नहीं है, तीनों तो आ गए ऑलरेडी, ठीक है। क्वेरी कौन लिखेगा, हाँ, क्वेरी रिटन बाय प्रोग्रामर, SQL क्वेरी अपन लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय, स्टेटमेंट क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर, तो और ये कौन, अब ये कौन क्या करना पड़ेगा अपने को, अपडेट कनेक्शन नो, कनेक्शन कौन इक्वल्स टू क्या था, माय SQL कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, एंड दीज आर नाउ, जब भी डेटा कनेक्टेड कोड आएगा तो इज ऑलवेज अ चांस ऑफ, इज ऑलवेज अ चांस ऑफ एक्सेप्शन, तो रोज एक्सेप्शन, और इसको इंपोर्ट कर लो कनेक्शन को भी, ठीक है, ओके। अपन ने जार ऐड नहीं किया, माई SQL का जार चाहिए ना, तो JDBC के अंदर अगर है तो रेफरेंस लाइब्रेरी में जार होगा, ऐसे ऐसे कॉपी होता है क्या, देखता हूँ, कॉपी होगा तो अच्छी बात है, कॉपी हो गया तो लिब में डाल देंगे ना उसको, नहीं यहाँ पे कॉपी नहीं होता, तो जार लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जार लेके आ जाता हूँ, कहाँ से, डी से, और कहाँ से मेरे जार, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में से JDBC ड्राइवर्स, और जार कॉपी कर लिया, और जार को यहाँ डाल दिया लिब के अंदर, ठीक है ना, CHCL भी है और माई SQL दिख तो नहीं रहा, हाँ, थर्ड नंबर पे दिख गया, ठीक है। तो जार भी कौन कर रहा है भाई, ऐड डेटाबेस ड्राइवर, जार इसे प्रोग्रामर को करना पड़ता था, ठीक है। स्टूडेंट हो गया, प्रिपेयर स्टूडेंट क्वेरी हो गई, सेट इन, अब वन का से सेट करूँ मैं, S1 डॉट गेट रोल नंबर, और S1 डॉट गेट एस नेम, और S1 डॉट गेट पर्सन, ठीक है, और फिर क्वेरी एग्जीक्यूट कर देंगे, ओके, एंड देन वी विल क्लोज द कनेक्शन ब्लॉक, सही है। तो ये जब हो जाएगा एग्जीक्यूट,
तो क्या हो गया इसको, क्यों वो मार रहा है ये, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। ओके, तो क्या करना पड़ता है फिर, थ्रोज करना पड़ता है, क्योंकि वो थ्रो कर रहा है ना, या तो ये हैंडल करते या तो ये भी थ्रो करे। अब सेम आएगा, ये इसको कौन कॉल कर रहा है, ये सर्विस में ना हम लोग, इसको कौन कॉल कर रहा है, कंट्रोलर, तो उसको भी फिर वही करना पड़ेगा, या खुद हैंडल कर, या तो क्या कर, थ्रोस कर दे, डेलीगेशन हो गया ना पूरा। तो ऐसे आपका पूरा का पूरा पाथ हो जाएगा। फिर वो जब ऐड हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो, स्टूडेंट लिस्ट। स्टूडेंट लिस्ट अभी क्या कर रहा है, स्टूडेंट लिस्ट अभी क्या कर रहा है, इससे लिस्ट मंगा रहा है, पर ये अभी मुझे हार्ड कोडेड दे रहा है ना, तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा फिर अपने को, हार्ड कोडेड दे रहा है ना ये, क्या करेंगे अपना अभी, हम्म, ये हम लोग आया सर्विस में, पूरा बिजनेस लॉजिक का होता है सर्विस में। तो सर्विस से क्या करेगा, स्टूडेंट रिपोजिटरी डॉट स्टूडेंट लिस्ट मंगा लेगा, क्या मंगा लेगा, क्या मंगा लेगा ये, स्टूडेंट लिस्ट, और उसको स्टोर कर देगा स्टूडेंट्स के अंदर, किसमें स्टोर कर देगा, so what will the student list function return, list of students. Now how will you do that, so what we have to do now, go to the JDBC and do what, select using statement ना, क्योंकि सारे स्टूडेंट से दिखाने हैं ना, कॉपी कर लिया, और सारे स्टूडेंट से दिखाने हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया, दिस ऑलवेज थ्रोज एक्सेप्शन, ये साइकिल अगर फॉलो नहीं करना तो फिर ट्राई कैच लिख दे देना, है ना, वरना फिर ये सारा बार बार सब जगह लिखना पड़ रहा है, थ्रोज थ्रोज थ्रोज। कैच कर देते एक्सेप्शन, ठीक है, अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, और क्वेरी भी लिख दिया अपन ने, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टेटमेंट भी क्रिएट कर दिया, एग्जीक्यूट भी कर दिया क्वेरी को, रिजल्ट सेट में आ गया, आरएस के अंदर आ गए। ना व्हाट टू डू, इफ का वाइल है क्योंकि लूप लगेगा, ना व्हाट टू डू, we will require a list of students over here ना, list of student, क्या नाम से, स्टूडेंट इज न्यू array list, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वो इंपोर्ट कर लो। ना व्हाट टू डू, अभी आरएस के अंदर फर्स्ट फर्स्ट इटरेशन में क्या आ गया, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट का, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर, तो क्या पास, क्या कहाँ से लेंगे उसको, आर एस डॉट गेट इंट पहला, फिर आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग दूसरा, और आर एस डॉट गेट डबल तीसरा। सही है, ये ऑब्जेक्ट अपने को बनाना पड़ रहा है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट है ये, S1, और फिर क्या करेंगे S1 को, क्या कर देंगे S1 को, और जब ये खत्म हो जाएगा लूप, क्या कर देंगे हम लोग, दिस फंक्शन विल डू व्हाट, दिस फंक्शन विल return the
और स्टूडेंट्स क्या है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, क्या बोल रहा है ये? ओके, ये बना है ट्राई के अंदर ना, क्या बना है ये? इसको बनाएंगे ट्राई के बाहर ताकि उसका एक्सेस। ओके, तो जब भी मैंने लिस्ट स्टूडेंट लिस्ट मांगी कंट्रोल रिपोजिटरी से, क्या क्या किया उसने? हु इज मेकिंग द एम्प्टी एरे लिस्ट, है ना? तो कितना हेडेक है इसका। पहले क्या बनाओ, एक एम्प्टी एरे लिस्ट क्रिएट करो स्टूडेंट्स की, फिर कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, क्वेरी एग्जीक्यूट करो, क्वेरी लिखो, क्वेरी एग्जीक्यूट करो, जो भी क्वेरी आया रिजल्ट सेट से एरे लिस्ट को पॉपुलेट करो। क्या करो? फ्रॉम द रिजल्ट सेट populate the what, array list, है ना? एंड देन रिटर्न इट। जब ये हम, तो फिर ये मिल जाएगा उसको। तो जब भी मैं बोलूंगा स्लैश होम, क्या बोलूंगा मैं? स्लैश होम, तो क्या बोलेगा? स्टूडेंट सर्विस से क्या लेके आएगा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सर्विस कहाँ से मंगा रहा है? रिपोजिटरी से। क्या बोल के? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, और वो ऐसे मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे रहा है। सही है। और जब मैंने ऐड किया यूजर को, क्या किया मैंने? जब यूजर एक ऐड हो गया तो एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म के बाद में तो वो कहाँ रन करेगा? वो स्टूडेंट लिस्ट। तो अब मुझे मेरे एक्टिव स्टूडेंट दिखेंगे, ठीक है? तो इसको अपना होम पेज कर लेते फिर, क्योंकि अपन ने इसमें ऐड स्टूडेंट दिया ही है ना, अपन ने इसके अंदर ऐड स्टूडेंट दिया ही है ना। अपन ने ऐड स्टूडेंट के अंदर क्या दिया है? ये स्टूडेंट लिस्ट में अपन ने ऐड स्टूडेंट का बटन दिया ही है ना। नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। कहाँ दिया था अपन ने? देखो, ये आप लोगों को मुझे होम पेज चाहिए। कौन सा चाहिए मुझे? होम पेज। तो यहाँ पर क्या था अपने? एंकर टैग ऐड स्टूडेंट, है ना? तो ये कहाँ राउट करेगा फिर अभी? एचरेफ किस पे राउट करेगा बोलो? ये कौन से इस पर राउट करेगा? फॉर्म वाला कौन सा है जो फॉर्म खोल रहा है? फॉर्म वाला कौन सा? ये वाला ना, ऐड स्टूडेंट फॉर्म। तो इसको अपन होम पेज कर देंगे। तो यहाँ से अपना स्टूडेंट ऐड भी हो रहा है, वापस इधर आ रहा है, ठीक है? तो जो अपना होम पेज है, हम किसको कर देंगे होम पेज? ये वाला जो राउटिंग है तो हम इसको दे देंगे। किसको दे देंगे? स्टूडेंट लिस्ट। तो देखो, स्टूडेंट लिस्ट क्या कर रही है? सारे स्टूडेंट्स को दिखा रही है डेटाबेस से। कहाँ से दिखा रही है? डेटाबेस से। और उसके अंदर ऐड का भी एक बटन है जो किसको हिट कर रहा है? ऐड स्टूडेंट फॉर्म को। जो ऐड स्टूडेंट फॉर्म क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ऐड स्टूडेंट फॉर्म? स्टूडेंट को ऐड करके कहाँ राउट कर रहा है वापस? फिर वो ये ऐड स्टूडेंट पे जा रहा है, और ऐड स्टूडेंट इधर आ गया, और ये कहाँ जा रहा है फिर? सेव स्टूडेंट डिटेल। और सेव स्टूडेंट डिटेल्स करके वापस कहाँ राउट कर रहा है? स्टूडेंट लिस्ट का। स्टूडेंट लिस्ट का ये है ना, स्टूडेंट लिस्ट के लिए राउटर क्या है? ठीक है। So now let's come and check. Let's see if it saves and refresh. Refresh हो गया। Now what will I do? I will just go and remove everything and just do a save. तो डेटा कुछ भी नहीं आ रहा है, क्यों? डेटा कुछ है ही नहीं, ठीक है? ऐड स्टूडेंट कर रहा हूँ 77 शिवम, ये क्यों आ रहा है भाई? हाँ, जो अपन ने खाली ऑब्जेक्ट भेजा था वो ये भेजा था, है ना? याद है ना? जो खाली ऑब्जेक्ट भेजा था यहाँ से,
क्या भेजा था अपन ने, है ना, वो दिखा दिया उसने। अब मैं रजिस्टर करता हूँ तो समझ में आ रहा है, वही काम किया पर मैंने कैसे यूज कर रहा हूँ अभी, एमवीसी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड स्टूडेंट जाओ, अब ये नहीं चाहिए, 18 विराट। अब ये रियल टाइम डेटा, हार्ड कोडेड डेटा नहीं आ रहा, कोई शक। अब अगर मैं यहाँ पर दे दूँ डिलीट बटन, तो क्या करने का पड़ेगा, कोई जेडीबीसी फंक्शंस कॉल होंगे, ठीक है। पर यहाँ पर देखो कितना हेडेक मुझे पालना पड़ रहा है, पूरा जेडीबीसी मुझे खुद संभालना पड़ रहा है, पूरा का पूरा खुद संभालना पड़ रहा है। जैसे करते आ रहे थे वैसे ही हो रहा है, जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही हो रहा है, बल्कि सेम वैसे। बट तो अभी हाइबरनेट देखो क्या करेगा, उसको और इजी कर देगा। ठीक है, तो हमारा अगला मिनी प्रोजेक्ट किस पे है,